Good evening, students. Welcome to the Royal Coaching Institute. Today, we continue our teaching methods, okay, which was yesterday we covered some methods and today some methods are left. So that left parts today we discuss, okay. So in our teaching method classes, we discuss so many kinds of teaching methods which contain very much important parts in your examination point of view, and we discuss so many teaching methods in an explanatory way and the inventor, okay, and which age this मतलब ये जो हम टीचिंग मेथड्स हम डिस्कस कर रहे हैं, टीचिंग मेथड कौन सा स्टेज के लिए अप्रोप्रिएट है, कौन सा स्टेज में ये चाहिए, है ना, हु इन्वेंटेड दिस टीचिंग मेथड, in which way this teaching method is appropriate and this is very much suitable for in our present teaching learning situation. इस तरह से हम क्या करते हैं, टीचिंग मेथड्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं. लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास, ओके. तो स्टूडेंट्स, हम आज हमारा 11 नंबर टीचिंग मेथड स्टार्ट करेंगे. दैट इज व्हाट the Montessori method of teaching. That is what the Montessori method of teaching. Montessori method of teaching was, who was the inventor, students? Here the inventor is Dr. Maria Montessori. Dr. Maria Montessori was the inventor of Montessori methods. So students, Montessori method of education that is based on the self-directed activity एंड हैंड्स ऑन लर्निंग, है ना, ये एक कोलैबोरेटिव प्लेवे मेथड है. इन मॉन्टेसोरी मेथड क्लासरूम चिल्ड्रन मेक क्रिएटिव चॉइस इन देयर लर्निंग while the classroom and the highly trained teacher offer as appropriate activities to the guide to this process. मॉन्टेसोरी मेथड एक ऐसा मेथड है स्टूडेंट्स जो कि ये बच्चों को सेल्फ डायरेक्टेड कराता है, उनका खुद का एक्टिविटीज के लिए स्टूडेंट्स कैन सेल्फ डायरेक्टेड इन देयर ओन वे, है ना. ये एक हैंड्स ऑन लर्निंग एक्टिविटीज होता है, या बच्चे क्या करते हैं, कोलैबोरेटिवली प्ले करते हैं. स्टूडेंट्स आर कोलैबोरेटिवली प्ले हियर एंड इन मॉन्टेसोरी क्लासरूम चिल्ड्रंस मेक द क्रिएटिव चॉइस इन देयर लर्निंग, है ना. बच्चों का जो चॉइस होता है, दिस आर ऑल्सो वेरी मच क्रिएटिव चॉइस. So this method is what the Montessori method, which was mostly benefited for the students belonging from the kindergarten school, है ना. यहाँ बच्चों को प्लेवे मेथड में, एक्टिविटीज मेथड में बच्चों को सेल्फ डायरेक्टेड किया जाता है. बच्चे की माइंड को क्लासरूम में, मतलब हाईली ट्रेंड टीचर्स आर देयर, क्योंकि यहाँ बहुत ट्रेंड टीचर होते हैं. जो ट्रेंड टीचर क्या करते हैं, बच्चे को माइंड को बहुत ट्रेंड करके बच्चों को सेल्फ डायरेक्टेड कराते हैं. सेल्फ डायरेक्टेड होने के बाद स्टूडेंट्स आर एबल टू डू देयर एक्टिविटीज इन देयर ओन पेस. सो दिस इज द मारिया मॉन्टेसोरी मेथड. मॉन्टेसोरी मेथड वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर मारिया मॉन्टेसोरी, जो कि हमारे लोअर क्लास के लिए इट इज वेरी मच अप्रोप्रिएट. सो लेट्स सी आवर 11 completed. 12 number method is what the program learning method. So students, here program learning जो method है हमारा, program learning method, it was a kind of method. ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लर्नर को क्या किया जाता है, लर्नर स्पेशली बुक्स आर prepared for the children or equipments to learn without a teacher. Program learning method जो है हमारे B.F. Skinner was the inventor of. Who was the inventor? B.F. Skinner was the inventor here. Okay, B.F. Skinner was the inventor of program learning method. And in program learning method, so many special books are prepared for the children. So many equipments are prepared for the learner, so that students can learn without teacher. So that बच्चा क्या करेगा, without teacher prepared होगा for the learning process. So it was intended to free
teaches from the burdensome drills and repetitive problem solving inherent in teaching basic academic subject like the spelling, arithmetic and the reading. यहाँ ये सब सब्जेक्ट्स को डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट को क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, डिफरेंट स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा. दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स कैन एबल टू ग्रास्प द नॉलेज, acquire the knowledge in an appropriate manner in according to their needs and interests. So this program learning method was discovered by whom? Was discovered by B.F. Skinner. So students, this is the program learning method. Here the program instruction also. Program instruction was invented by Norman A. Corder. Norman A. Corder was the inventor of प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन. एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एक ऐसा मेथड है, इट इज अ मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग न्यू सब्जेक्ट मैटर टू द स्टूडेंट्स इन अ ग्रेडेड सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल स्टेप्स. स्टूडेंट्स, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जिसको कि प्रेजेंट करने के लिए टीचर क्या करते हैं, so many steps are there and according to the steps टीचर क्या करेंगे, टीचर प्रेजेंट देयर टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट. ओके, सो स्टूडेंट्स वर्क थ्रू द प्रोग्राम मटेरियल्स बाय देमसेल्व्स एट देयर ओन पेस एंड आफ्टर ईच स्टेप ऑफ टेस्ट देखो, और आफ्टर ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट होता है ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में, और एक स्टेप्स के बाद टीचर क्या करेंगे, एक टेस्ट लेते हैं बच्चे का. कॉम्प्रहेंशन पावर को टेस्ट किया जाता है, एनकरेजिंग पावर, मोटिवेशन पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर को बच्चों का टेस्ट किया जाता है by answering an examination questions or filling in a diagram. So यहाँ जो एक टेस्ट लिया जाता है after completion of the each step, there is some examination, there is some assessment in program instruction method, and on the basis of that examination the teachers evaluate the performance of the children. Okay, so this is the program instruction children, है ना. So learning by doing जो है ये हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का दिस इज द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग. लर्निंग बाय डूइंग मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग फॉलोज हियर, है ना. ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में लर्निंग बाय डूइंग मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग यहाँ फॉलो किया जा रहा है. एंड स्टूडेंट्स आर एक्सपोज्ड ओनली द करेक्ट रिस्पॉन्सेस. अब बच्चों को हमेशा बोला जाता है कि करेक्ट रिस्पॉन्स देने के लिए, है ना. देयरफॉर द लेस पॉसिबिलिटीज टू कमिट error, or here the error power is completely reduced and gradually reduce because students are always try to give the right answer or the correct answer. Students हमेशा क्या करेंगे, करेक्ट आंसर देने के लिए ट्राई करेंगे. दैट्स वाई दे कैन रिड्यूस, उन लोग हमेशा क्या करेंगे, दे रिड्यूस द पावर ऑफ एरर. उन लोगों का एरर क्या होगा, रिड्यूस होगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड स्टूडेंट. सो मैंने ये स्टेप वाइज होता है. आफ्टर ईच स्टेप टेस्ट are there, examinations are there, and on the basis of that stepwise examination teacher क्या करेंगे, teacher assess the performance of the children, and according to the performance again the steps should be prepared according to the needs and interest of the children. Number 14 हमारा हो गया Winnetka method. And who is the founder of Winnetka method? Winnetka method was given by Carlton Washburn. Carlton Washburn was the founder of Winnetka method. So what is Winnetka method students? ये तुम्हारे लिए पूरा न्यू होगा, मुझे मालूम है. It is very much new method for you kind of child because you are in primary stage for competitive examinations, right? So let's start. Let's we know what is Winnetka method. देखो students, this is a method of plan to expand the educational focus to creative activities and emotional and social development. यहाँ क्या किया जाता है, बच्चों का एजुकेशन को यहाँ फोकस किया जा रहा है. ओके, बच्चों का एजुकेशन को यहाँ क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा. That's why here एजुकेशन को फोकस करने से उनका जो क्रिएटिव एक्टिविटीज है
इमोशनल पावर है, सोशल पावर है, ये सबको बहुत डेवलप करने के लिए ट्राई किया जाता है इन विंटिका मेथड बाय प्रोवाइडिंग फोकस टू द एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन को डेवलप करें तो बच्चों का एक्टिविटीज, इमोशनल, सोशल, पॉलिटिकल सब एस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट होगा। सो दिस वाज द लेटर बिकॉम कॉल्ड द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। और कुछ टाइम के बाद विंटिका मेथड को क्या बोला गया, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस भी बोला गया। सो देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रोग्राम जो विंटिका मेथड है ना, यहाँ करिकुलम वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ करिकुलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सो 1 पार्ट्स एंड द 2 पार्ट्स। एक पार्ट हो गया कॉमन एसेंशियल्स, है ना, यह एक पार्ट हो गया हमारा कॉमन एसेंशियल, ओके, और सेकेंड वन है हो गया क्रिएटिव ग्रुप एक्टिविटीज। ओके, कॉमन एसेंशियल, विंटिका मेथड इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, 2 ग्रुप्स ऑफ करिकुलम। वन इज कॉमन एसेंशियल्स and the second one is creative group activities. Okay, so common essential क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, common essential required a student to demonstrate mastery to the advance. कॉमन एसेंशियल्स में बच्चों को क्या किया जाता है, बच्चों को मास्टरी, मतलब उनके नॉलेज में उनको मास्टरी करने के लिए ट्राई किया जाता है। जो बच्चे, मतलब बच्चों को मास्टरी नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए कॉमन एसेंशियल में, मतलब टीचर आर वेरी मच ट्राई टू प्रोवाइड देमसेल्व्स टू द नॉलेज इन दैट अमाउंट, रिक्वायर्ड नॉलेज, इतना नॉलेज प्रोवाइड करें कि बच्चों क्या हो जाए, मास्टरी ओवर दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट एंड दे आर कंप्लीटली एडवांस इन दैट फील्ड। सो क्रिएटिव एक्टिविटीज क्या होता है, क्रिएटिव एक्टिविटीज में क्या किया जाता था, क्रिएटिव साइड में किया जाता था कि ये अलाउ करता था स्टूडेंट टू एडवांस एट द डिफरेंट रेट्स एट देयर वर नो स्ट्रिक्ट गोल्स एंड द स्टैंडर्ड्स, है ना। मतलब हमारे जो क्रिएटिव ग्रुप एक्टिविटीज में ये अलाउ करता था ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे एडवांस स्टूडेंट्स को ये अलाउ करता था जो कि डिफरेंट रेट्स में दे आर डिफरेंट रेट्स इन देयर एडवांस्ड, इन उनका जो स्किल है, उनका जो पावर है, वो लोग क्या करते हैं, डिफरेंट रेट्स में उनका जो डेवलपमेंट होता रहता है एंड यहाँ कुछ स्ट्रिक्ट गोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस होता नहीं है। सो ये जो क्रिएटिव एक्टिविटीज होता है, यहाँ गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर पुटिंग इनटू द हायर क्लासेस, मतलब गिफ्टेड स्टूडेंट्स को यहाँ हायर प्लेस में रखा जाता है। Gifted students are placed into higher places and putting into the higher classes. The students who are struggling within the school work were put in the special classes. देखो हायर, देखो ये जो विंटिका मेथड एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट मेथड है जिसमें को तुमको जानना बहुत जरूरी है। यह करिकुलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। एक हो गया हमारा कॉमन एसेंशियल, एक हो गया हमारा क्रिएटिव ग्रुप एक्टिविटीज। और क्रिएटिव ग्रुप एक्टिविटीज में हियर द गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर पुटिंग इनटू द हायर क्लासेस। यहाँ देखो गिफ्टेड स्टूडेंट्स और द पुअर स्टूडेंट्स, फिर यहाँ 2 कैटेगरी था, जो कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स को हायर क्लासेस में रखा जाता था एंड द पुअर स्टूडेंट्स आर कंसिडर्ड एज द स्पेशल क्लासेस, उनको स्पेशल क्लास में रख दिया जाता था। सो दोज आर द व्हाट द इंडिविजुअल, मतलब जो दोज द स्टूडेंट्स who are facing the individual problems who are considered as the poor child, और उनको स्पेशल कैटेगरी में रख दिया जाता था। So here the struggling students are receive 1 and 1 half, मतलब 1 and 1 half from teacher, मतलब बच्चे लोग को, मतलब देखो ये जब डिवीजन होने के वजह से क्या हो जाता था, बच्चे लोगों का कैटेगराइजेशन हो जा रहा था। एक साइड हो गया हाई लेवल ऑफ लर्नर एंड अनदर साइड हो गया लो लर्नर। तो इफ सो दैट द टीचर्स आर आइडेंटिफाई who the students belonging from the low category and the students belonging from the high category. Okay, so yes, हमारे टीचर क्या करते थे, जिसे ज्यादा चाहिए, जिसे द स्टूडेंट्स हु नीड मोर हेल्प, उन्हें मोर हेल्प दिया जाता था, और द स्टूडेंट्स हु नीड द लेस हेल्प, उन्हें लेस अमाउंट ऑफ हेल्प और थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट का, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी उन्हें प्रोवाइड किया जाता था। दैट्स व्हाई द स्टूडेंट्स मतलब डोंट फील बोर इन द क्लासरूम। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द विंटिका मेथड। ये हमारा विंटिका मेथड के बारे में इतना ही हमारे पास। दिस इज द मच मोर इंफॉर्मेशन
जो मेरे से हुआ वो मैं आपको प्रोवाइड करने के लिए ट्राई की। विंटी का मेथड एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसको ग्रुप ऑफ टू ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज में बच्चों को डिवाइड किया जाता है ना, टू ग्रुप ऑफ पीपल में डिवाइड किया जाता है, कॉमन एसेंशियल्स एंड द क्रिएटिव पीपल, है ना। कॉमन एसेंशियल में कॉमन एक्टिविटीज, कॉमन जितना भी हमारा एडवांस नॉलेज बच्चों को देना चाहिए वो प्रोवाइड किया जाएगा। और क्रिएटिव एक्टिविटीज में यहाँ बच्चों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जो कि हायर लर्नर एंड द लो लर्नर। Higher learners are considered in a high place and lower learners are considered in the lower place. Okay. So यहाँ क्या करते हैं टीचर को one on one help मिलता है, मतलब each and every पुअर लर्नर को टीचर क्या करेंगे, जाके आइडेंटिफाई कर पाएंगे और टीचर उन्हें इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअल हेल्प देके टीचर ट्राई टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द चिल्ड्रन. So here, this is all about the Wintka method. Who was profounder here? Carlton Wasburn was the profounder here. So next we talk about the number 15. That is 5 steps lesson on the Harbertian method. Okay. So Harbertian method, or we can say 5 steps lesson plan, was invented by whom, students? Was invented by Herbert. Okay. Herbert के नाम से ही इसे Harbertian method बोला जाता है. ओके, सो इट इज वेरी मच मतलब वेरी मच फेमस वन, जो कि हमारे ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब में ये कंसिडर किया जाता है. ट्रेडिशनल क्लासरूम में ये बहुत यूज होता है ना, जो कि हार्बर्टियन मेथड के नाम से कहलाता है. एंड दिस स्टेप है, मतलब दिस मेथड हैज 5 स्टेप्स. क्या क्या होता है? फर्स्ट होता है हमारा प्रिपरेशन, सेकेंड होता है प्रेजेंटेशन, थर्ड वन इज एसोसिएशन, fourth one is generalization, fifth one is application. Okay, the first one is what? First one is preparation, second one is what? Presentation, third one is what? Association, fourth one is what? Generalization, fifth one is what? Application. So those are the 5 steps of Harbertian method. So Herbert हो गया उनके फाउंडर. नेक्स्ट हो गया हमारा नंबर 16, दैट इज द ब्रेली स्क्रिप्ट. दैट इज व्हाट? ब्रेली स्क्रिप्ट. सो लेट्स वी डिस्कस ब्रेली स्क्रिप्ट. वी वेल नोन अबाउट द ब्रेली स्क्रिप्ट एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रेली स्क्रिप्ट हियर? ब्रेली स्क्रिप्ट के फाउंडर हो गए हमारे लुइस ब्रेली. हु इज द फाउंडर? हु इज द इन्वेंटर? लुइस ब्रेली. ओके, सो लेट्स डिस्कस ब्रेली क्या है ना. ब्रेली क्या है? ब्रेली एक सिस्टम है स्टूडेंट्स. ब्रेली इज ए सिस्टम ऑफ राइज डॉट्स दैट कैन बी रीड विथ फिंगर्स बाय द पीपल हु आर ब्लाइंड और हु हैव लो विजन, है ना. यहाँ क्या होता है? डट 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 होगा. ओके, सो मेनी डट 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 डट्स आर देयर, सो मेनी डट्स आर देयर. अरे इसको उन लोग ही पढ़ पाएंगे, दोज हु हैव लो विजन and completely blind people and the low vision people के लिए mainly this script was prepared. And this is not a kind of language, children. इसे script बोला जाता है, ये एक language नहीं है. So don't say it is a language, it is a kind of script. So here ये क्या होता है? visually impaired और impaired children के लिए ये mainly focusable होता है. So this is what the Braille script. Braille एक डॉटेड पॉइंट्स होता है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड और द लो विजन पीपल आर एबल टू रीड इन अ एप्रोप्रिएट मैनर. और ये उन लोगों के लिए बहुत इजी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ रहता है. दैट्स व्हाई द ब्लाइंड एंड द लो विजन पीपल आर एबल टू रीड इन अ प्रॉपरली अंडरस्टैंडेबल मैनर. ओके, नेक्स्ट हो गया हमारा ब्रेली. आफ्टर द ब्रेली basic education is there. So basic education, students, you well known about the basic education. Who was the founder of basic education here? Mahatma Gandhi. This is the Mohandas Karamchand Gandhi was the inventor of basic education. So students, what is basic education? Basic education तो अगर हम बोलने के जाए तो basic education is the whole range of educational activity that taking place in various settings that aims to meet the basic needs of the people. है ना. महात्मा गांधी जो बेसिक एजुकेशन जो निकाले थे स्टूडेंट्स, इसका मेन एम क्या था? इसका मेन मुद्दा था कि लोगों का बेसिक नीड्स को हम कैसे फुलफिल करें. लोग जो हैं उन्हें एजुकेशन इज प्रोवाइडेड इन दैट वे
where the students can able to fulfill their basic needs like the food, shelter and clothes. उन लोगों को बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए. Education should be independent. Education should be provided to the child. Vocational education should be provided to the child. So this is the basic education जो कि बच्चों को उनका बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए हेल्प करता है. सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा बेसिक एजुकेशन था इसका कुछ एम था लाइक द एजुकेशन एंड वर्क को इंटीग्रेट करो, है ना. काम भी कराओ बच्चों को काम भी सिखाओ. एजुकेशन प्लस वर्क, है ना. एजुकेशन भी कराओ एंड काम भी सिखाओ. देन द सेल्फ सफिशिएंसी एजुकेशन यहाँ बच्चों को दिया जाता था. देन डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, या ह्यूमन वैल्यूज को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाए. ह्यूमन वैल्यूज आर ऑल्सो प्लेज very very much important role, and one of the last and important role is what? The harmonious development. Harmonious development among the people is very much important during was the basic education. MK गांधी बेसिक एजुकेशन जो बोल रहे थे, हारमोनियस डेवलपमेंट होनी चाहिए, है ना. इंडिविजुअल के माइंड में वर्ड क्या बोले थे? बाय एजुकेशन आई मीन all round drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit. Means what? बच्चों का एजुकेशन हम उसे बोलेंगे जो कि बच्चों का क्या करेगा? माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट को हार्मोनियसली बैलेंसली डेवलप करेगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक एजुकेशन. नाउ वी स्टडी अबाउट द इमिटेशन मेथड. सो बच्चों, इमिटेशन मेथड जो है हम बहुत अच्छे से इमिटेट करना आता है हमें, है ना. अगर एक अच्छा सा अगर हीरो आ गया तो लड़के क्या करेंगे? हीरो का हेयर स्टाइल, हीरो का ड्रेस कोड, हीरो का शूज, सब कुछ कॉपी करने लगेंगे. अगर एक अच्छा सा सिंगर आ गई, अच्छा सा एक हीरोइन आ गई, देन गर्ल्स आर गिविंग स्टेटस एंड स्टेटस. आई एम लुकिंग लाइक दिस, आई एम लुकिंग लाइक हर, आई वांट टू बी लाइक हर. सो बच्चे मतलब लड़कियां क्या होते हैं, जो मतलब हम क्या होते हैं, टीन एजर्स क्या करते हैं, यूथ पीपल जो कि फेमस सेलिब्रिटीज लोगों का बहुत कॉपी करते हैं. देन वी हैव सम आइडियल पीपल्स आर देयर. सो इमिटेट जो मेथड है ना चाइल्ड, ये अल्बर्ट बांदुरा दिए थे इमिटेट मेथड को, है ना. और इमिटेट मेथड जो दिए थे, इमिटेशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इमिटेशन मीन्स व्हाट? द कॉपिंग द बिहेवियर, copying the activities of the people, copying the behavior of the peoples, whatever our ideal person, हमारे ideal person जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, इफ वी आर कम्प्लीटली, अगर हम उनके काम में हम इम्प्रेस्ड हो गए हैं पूरा, देन वी इमिटेट एंड इमिटेट. सो सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, अगर हम क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में भी टीचर क्या करते हैं? टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो स्टूडेंट्स को जो टीचर फेवरेट लगते हैं ना, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं? वो टीचर के क्वालिटीज, ड्रेसिंग स्टाइल, फूडिंग स्टाइल, टीचिंग स्टाइल, स्टूडेंट्स कैन एबल टू व्हाट? द इमिटेट एंड दे लर्न ग्रेजुअली. एंड एक दिन ऐसा आता है कि पूरे टीचर को पूरा इमिटेट करके पूरा उनका रोल प्ले कर देते हैं, है ना. सो दिस इज द इमिटेशन मेथड. कॉपी करना, कॉपी इन द सेंस दूसरों को, मतलब दूसरों का जो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुड एटीट्यूड्स है, उसको खुद के अंदर में अडॉप्ट करना. दिस इज द इमिटेशन मेथड. साइंटिफिक मेथड क्या है स्टूडेंट्स? साइंटिफिक मेथड हो गया जो कि रिलेटेड टू द साइंस, है ना. साइंटिफिक मेथड हमें सबको मालूम है, जो कि साइंटिफिक मेथड जो कि ऑब्जर्वेशन में होता है, थ्रू द हेल्प ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड, थ्रू हेल्प बाय आस्किंग क्वेश्चंस, टू फॉर्म हाइपोथेसिस, है ना. देखो स्टूडेंट्स, साइंटिफिक मेथड अगर हमें क्लासरूम में अडॉप्ट करनी है तो इसीलिए मेनली इसका 6 स्टेप्स होता है. हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? 6 स्टेप्स आर देयर. एंड 1 स्टेप फर्स्ट हो गया, हमें ऑब्जर्वेशन करना होगा, देन हमें क्वेश्चन आस्क करना होगा, देन हमें हाइपोथेसिस फॉर्म करना होगा. आफ्टर फॉर्मिंग हाइपोथेसिस वी हैव टू make the prediction based on the hypothesis, है ना. Then we quest prediction, then what we use the result. हम जो prediction कर रहे हैं, हमें उस जो result निकला, we have to use that result and make the new hypothesis from that result. And after that we have to, on the basis of the hypothesis, on the basis of the result, we have to
प्रेडिक्ट इन अ न्यू वे. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, फिर प्रेडिक्ट कर लेंगे. सो दोज आर द 6 वेज ऑफ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन. फर्स्ट हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड, फर्स्ट हो गया ऑब्जर्वेशन स्टेप, नेक्स्ट हो गया आस्किंग क्वेश्चन, थर्ड वन इज फॉर्म हाइपोथेसिस, फोर्थ वन इज मेक प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस, फिफ्थ वन इज क्वेस्ट क्वेश्चंस, देन द क्वेस्ट प्रेडिक्शंस करोगे. सिक्स वन इज यूज द रिजल्ट टू मेक हाइपोथेसिस और प्रेडिक्शंस, है ना. तो हमारा लास्ट हो गया रोल प्ले मेथड. जो रोल प्ले मेथड क्या होता है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इट इज अ टेक्निक that allows the student to explore the realistic situation by interacting with other people in a managed way in order to develop the experience and in order to develop the experience and trial different kind of strategies in a supported one. मतलब रोल प्ले एक ऐसा मेथड होता है, ये एक ऐसा टेक्निक होता है जो कि टीचर क्या करते हैं, ट्राई टू एक्सप्लोर द रियलिस्टिक सिचुएशन बाय इंटरेक्टिंग विथ अदर पीपल, है ना. देखो स्टूडेंट्स, रोल प्ले मेथड तो हमें पहले इन्वेंटर को जाननी होगी, जो कि इन्वेंटर थे जैकब एल मोरिनो. वी विल डिस्कस लेटर ऑल्सो. हम बाद में भी डिस्कस, आगे से भी हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं जैकब एल मोरिनो के बारे में, रोल प्ले मेथड जो कि डिस्कवर किए थे. रोल प्ले मेथड एक ऐसा टेक्निक है जो कि अलाउ करता है लोग पीपल को, जो कि रियलिस्टिक सिचुएशन में कुछ चीज एक्सप्लोर कर पाओ, है ना, बाय इंटरेक्टिंग विथ अदर पीपल. एंड हियर टीचर वाज सपोर्टेड पर्सन. टीचर बहुत सपोर्ट करते हैं बच्चों को. और साइंटिफिक मेथड जो हो गया, हमारे फाउंडर थे कौन, फ्रांसिस बेकन. वी ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस क्लासेस. सो प्लीज see all the classes, please attend all the classes. That's why there is no any confusion inside your mind and everything will be clear. So these are the today's method students. Montessori method was given Dr. Maria Montessori. Program learning method B.F. Skinner. Program instruction Norman A. Coder. Wintica method Carlton Wasborn. 5 steps lesson, or we can say Harbertian method, Harbert given. Okay, then the Braille script, Louis Braille. Basic education, M.K. Gandhi. Imitation method, Albert Bandura. Scientific method, Francis Bacon. Role play method, Jacob L. Morino. So those are the methods and the inventor what we discussed in our today class, है ना. तो ये क्लास में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स, so please comment me in the comment section, है ना, then so that I will solve your any kind of problem wherever you face. Okay, so thank you students, thank you so much, and comment me if you have any kind of doubt.